to my channel, Anonymous KS Aspirant. So the first week has gone by, and here I am uh, to just ponder upon what uh, I have achieved and what I could not do, and what are the reasons behind. So this was our weekly plan for 23 November till 30th of November, and the target was obviously GS1. I had my test on 1st of December, so I could not do art and culture. Like, I even didn't have a time to touch upon that. I did modern history, but some of the chapters are still left, so that's halfway done. Then freedom struggle, I have done it completely. World history, I just realized that I had notes. um, I had underlined the stuff, but I didn't have time to revise it, so that would be considered a no. Then society, I did role of a woman. It was I just gave it half a day because the notes were prepared, everything was done, I just had to revise. So role of women I did. Diversity wala bhi I did. Effects of globalization I did not. Social empowerment and others I did not. Then there were a couple of other topics also, like urbanization, communalism, etc., that I did. Then physical geography I could not. uh, Economic geography I did. Then location of industry and all, that is human geography, that I did. Then physical geography and Indian geography, I completely missed those. Then post independence also, uh, I mean, I had notes, I had very crisp notes of these, but I just could not revise, so that's a cross for me. Overall, if I would look at my week, very few, if we'll consider, तो बहुत कम topics हो पाए हैं. I mean, I have so much, what should I say, potential था, but I think I'm, to be very very honest, most of the time was, you know, I was struggling to make a habit, I was struggling to make a routine. um, but yeah, key takeaways यही हैं कि अब ना एक भी टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है. अगर मैं अब भी इस इशू पे स्ट्रगल कर रही हूँ, दैट आई कैन नॉट यू नो फोकस, दैट आई कैन नॉट कंसंट्रेट, देन आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम. बिकॉज अब ये जो सब टॉपिक्स हैं ना, ये ऑटोमेटिकली अब नेक्स्ट जो GS1 का टेस्ट है उसमें चले जाते हैं. अभी तक आई शुड हैव, वॉट शुड हैव बीन डन वॉज कि इसके शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बन जाने चाहिए थे, जो कि नहीं है. तो GS1 तो मैं बोलूँगी कि सोसाइटी के क्रिस्प नोट्स हैं, लेकिन उनको और क्रिस्प करने की ज़रूरत है. इसके तो चलो क्रिस्प नोट्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी मतलब क्रिस्प करने की ज़रूरत है. तो GS1 को थोड़ा सा टाइम अभी और देना पड़ेगा. तो मतलब GS1 इज़ स्टिल पेंडिंग, जबकि दैट शुड हैव बीन डन. तो फोकस एंड डिसिप्लिन इज़ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. टाइम को बढ़ाना पड़ेगा. और या आई थिंक यही है. अब आते हैं अपने ऑप्शनल पे. तो ऑप्शनल तो बहुत ही बुरा चला है. बाय द वे, आई कंप्लीटेड ये, बट आई कुड नॉट कंप्लीट पेपर 2. देन 1.6 का 3/3 हो गया, लेकिन 1.2 नहीं हुआ है. 1.7 1.8 नहीं हुआ है. 1.3 नहीं हुआ है. 2.1 एंड 2.2 भी हो जाना चाहिए था. 2.3 भी हो जाना चाहिए था. सो ऑप्शनल तो मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ है. सिर्फ I just completed 1.5 and 1.6, और 1.1 वो भी not complete, मतलब पूरा. तो this was a utter failure. तो अगर यही हिसाब चलता रहा तो ऑप्शनल को कहते हैं इज़ की टू सक्सेस. अगर यहाँ पर मार्क्स खींच लिए ना, तो GS में अगर एवरेज भी होगा ना तो वो चल जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पर ही मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, तो GS में मैं एक एवरेज बंदे से कितना ज़्यादा स्कोर कर लूँगी? 5 मार्क्स, 10 मार्क्स बस. यहाँ पर मैं एक दूसरे ऑप्शनल वाले से या अपने ही ऑप्शनल वाले से 30 से 50 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ.
ठीक है, तो यहाँ पर गेम चेंज होती है एंड आई एम लैकिंग इन दैट। सो इसके की टेक अवेज व्हाट आई हैव डिसाइडेड, पहले मैं सोच रही थी कि आई विल कंप्लीट द सिलेबस एंड देन आई विल जॉइन टेस्ट सीरीज, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड आई विल टेक द टेस्ट सीरीज स्ट्रेट अवे, क्योंकि फिर उससे एक तो प्री प्लान स्केड्यूल होगा और मैं उसी हिसाब से पढ़ के एक प्रेशर बिल्टअप होगा, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ के एग्ज़ाम दूंगी तो सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट होता जाएगा। सो या टेस्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रही हूँ और सेम गोज़ विद दिस ऑल्सो, डिसिप्लिन एंड four most important thing is balance, have to balance between optional and GS. So yeah, this was week one, about week one, and about my test. The test series I've joined, they mixed all the questions of GS 1, 2, 3, 4, and it was a complete, I don't know what kind of a paper it was. I'm still skeptical about it now कि मैंने ठीक टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी की है या नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट में क्या होता है। दे हैव प्रॉमिस दैट वो GS 2 का ही पेपर डालेंगे, बट GS 1, 2, 3, 4 दे के ये पता चल गया कि एक एवरेज आंसर मैं लिख पा रही हूँ। मतलब आई अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस और कुछ 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने 3 क्वेश्चंस तो मतलब बस एक एक लाइन लिख दी हुई है, एक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो ऑलमोस्ट लिखा है, शायद उसका कंक्लूजन नहीं लिख पाई हूँ। तो एक एवरेज आंसर लिख पा रही हूँ, एवरेज से आई थिंक थोड़ा अच्छा ही लिख रही हूँ, मतलब नहीं शायद एवरेज ही लिख रही हूँ। मतलब स्टैटिक पूरा अच्छे से याद है, बस उसमें कुछ वैल्यू एडिशन जो मुझे एक एज दिलाएगा वो रिविजन से आएगा ऑफ कोर्स, और वो शायद मैं नहीं लिख पा रही हूँ। आई थिंक माई इंट्रोडक्शन बॉडी दो इट्स नॉट चेक्ड, बट मुझे लगता है कि उसका इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से जा रहा है। आई मीन एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट, आई जस्ट नीड टू रिवाइज मोर। लेट्स सी अब इसमें कितने मार्क्स आते हैं। एंड थैंकफुली GS 1 का नहीं हुआ बिकॉज मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, बट नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू GS 2 पेपर। ऑल्सो आई एम सिटिंग फॉर असिस्टेंट कोऑपरेटिव एग्ज़ाम रजिस्ट्रार, तो उसका भी 12 दिसंबर को एग्ज़ाम है। सो हैव टू बैलेंस बिटवीन 3 नाउ। थोड़ा सा GS 2 का टाइम कम करूँगी और इस पे ज़्यादा फोकस करूँगी। इससे ये तो होगा कि एक बार स्टैटिक दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, बट आई थिंक आई विल नॉट गिव GS 2 एग्ज़ाम दिस टाइम आई गेस, क्योंकि फिर वो शायद हो ही नहीं पाएगा। बट लेट्स सी क्या होता है, अभी इस बारे में अभी इतना नहीं सोचा, बट ठीक है देखते हैं। सो या दैट वॉज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please comment down below if you think you have some positive things for me, or any of your suggestions are welcomed. Thank you. I'll see you in my next. Bye.